کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں خوش آمدید، شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ ملک بھر کی طرح پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ مختلف تقاریب کا انعقاد اور ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء نے خواتین کی صلاحیتوں کو سراہا۔ فیروزوالا میں عطائی ڈاکٹر کے ہاتھوں خاتون کی ہلاکت پر ورثہ سراپا احتجاج بن گئے۔ مشتعل ورثہ نے ڈاکٹر کی خوب درگت بنائی، منہ کالا کر کے گلیوں میں گھماتے رہے۔ خانیوال میں پولیس کا انوکھا کارنامہ، کمسن بچے پر گاڑی کی توڑ پھوڑ کرنے، کار سوار کو تشدد کا نشانہ بنانے اور 20,000 روپے نقدی لوٹنے کا مقدمہ درج۔ 5ویں جماعت کا طالب علم انصاف کے لیے عدالت پہنچ گیا۔ خوشاب میں 3 اضلاع کو ملانے والی مین شاہراہ کا افتتاح کر دیا گیا۔ سڑک کی تعمیر میں 142.499 ملین روپے کی لاگت آئی۔ سیالکوٹ میں 10 لاکھ روپے مالیت سے لگائے گئے کلوز سرکٹ کیمرے فعال ہو گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی۔ فاروق آباد میں مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ دلہنوں کو فی کس 1 لاکھ روپے مالیت کے جہیز کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ سندھ بھر میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ خیرپور کی شاہ لطیف یونیورسٹی میں سیمینار کا انعقاد۔ خواتین کے ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء بھی نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ ضلع بدین کا واحد گرلز ڈگری کالج انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ خستہ حال عمارت کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ مردان میں پولیس نے کومبنگ آپریشن کے دوران 3 سہولت کاروں سمیت 15 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ شانگلہ اور گردنواہ میں برف باری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ دیر، بٹگرام اور دیگر پہاڑی علاقوں کی رابطہ سڑکیں متاثر ہوئیں۔ لوئر دیر کے علاقے حیات سری میں سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود سینکڑوں ایکڑ اراضی واگزار نہ کرانے پر شنواری قبیلے نے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ کی دھمکی دے دی۔ کوئٹہ میں ڈی آئی جی عبدالرزاق چیمہ کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ آپریشن رد الفساد کے تحت اب تک 71 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ اور آزاد کشمیر باقی رہائشی خاتون کو 1 سال کے بعد بھی انصاف نہ مل سکا۔ گزشتہ برس آج ہی کے دن سفاق شوہر نے طیبہ کی ناک کاٹ دی تھی، ملزم تاحال گرفتار نہ ہو سکا۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، سیمینارز اور تقریبات بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اعجاز ترین کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ مختلف تنظیمیں اور NGOs ریلیاں نکال رہی ہیں، سیمینار اور تقریبات منعقد
की जा रही हैं। पाकिस्तान में खवातीन की 51% आबादी मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और जिंदगी के हर शोबे में खवातीन ने अपनी सलाहियतों को मनवाया है। खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये कोई रस्म या ये कोई रिवायत नहीं है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, बल्कि ये एक अहद है हमारी आने वाली बच्चियों के साथ, हमारी अगली नस्ल के साथ, कि हम खवातीन को वो मकाम दिला के रहेंगे जिनकी वो हकदार हैं। पेरेंट्स ऐसी जो हैं लोगों की तरबियत करें, बच्चों की तरबियत इस तरह की होनी चाहिए कि वो औरत की इज़्ज़त करें। कि आज जो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा है, तो आज के दिन ये अज़म होना चाहिए लोगों का कि खवातीन की रिस्पेक्ट की जाए। मुल्क की तरक्की के लिए हमें अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो देना होगी, क्योंकि जिस मुआशरे ने खवातीन की तालीम और तरबियत को अहमियत दी, उसने तरक्की की मनाजिलें तय की हैं। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है और हमें ये अहद करना होगा कि इस्लाम ने हम पर औरत के लिए जो फर्ज आयद किए हैं, ख्वाह वो किसी भी रिश्ते की शक्ल में हो, हमें ये फर्ज अदा करना होंगे। अगर हम ये फर्ज अदा करें तो माशरती और घरेलू मसाइल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, जबकि हुकूमत को भी खवातीन के मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन मुख्तार अहमद के साथ इजाज़ तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बात कर लेते हैं साहिवाल के बारे में। साहिवाल में भी खवातीन का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद खवातीन को उनके बुनियादी हुकूक के बारे में आगाही देना और उनकी माशरती अहमियत को उजागर करना था। साहिवाल में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनाकात किया गया। इस हवाले से साहिवाल के मेडिकल कॉलेज की तालिबात ने खवातीन के हकूक के बारे में आगाही बढ़ाने की गरज से वॉक की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ कलमात दर्ज थे। उनका ये कहना था कि खवातीन मर्दों से कम नहीं हैं। अगर उन्हें मौके फराहम किए जाएं तो वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। खवातीन ने हमेशा इस मुआशरे में रीढ़ की हड्डी का काम किया है और कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। We are united and women can do wonders. Women can do wonders in every field. And the take-home message is that when we will respect ourselves, the world will respect us. आर्ट्स काउंसिल में खवातीन के हाथों से बनाए गए फनपारों की नुमाइश मुनक्किद की गई। नुमाइश में खवातीन की तैयार करदा मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग, आईने, गुलदस्ते, बच्चों के कपड़े और दीगर अशिया रखी गई थीं। शहरियों की बड़ी तादाद ने ये नुमाइश देखी और खवातीन की खूब हौसला अफजाई की। नारोवाल में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें साबिका और मौजूदा अरकान असम्बली ने शिरकत की। नारोवाल में नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम खवातीन के आलमी दिन पर सेमिनार का इनाकात किया गया। शुरका का ये कहना था कि दही इलाकों में खवातीन को तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। उनका ये कहना था कि अगर एक औरत तालीम याफ्ता होगी तो पूरा मुआशरा तालीम याफ्ता होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब हुकूमत ने खवातीन के हवाले से मुताद्दिद बिल मंजूर किए हैं, जिनमें खवातीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में खवातीन का कोटा रखा गया है, जो कि खुशाइंद इक़दाम है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पढ़ी लिखी माएँ बेहतरीन मुआशरे की बुनियाद होती हैं। जब तक माएँ अपने बच्चों की बेहतर तरबियत नहीं करेंगी, उस वक्त तक मुआशरे से दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म नहीं हो सकता। खवातीन के आलमी दिन पर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में मुनक्किद हुआ जश्न बहारा का मेला। जश्न में तुलबा और तालिबात ने कौमी सकाफत को इस खूबसूरती से पेश किया कि हर कोई दाद देने पर मजबूर हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान शेख। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के तहत खवातीन के दिन पर जश्न बहारा की तकरीबात का आगाज हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालबात ने चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत को खूबसूरती से उजागर किया। किसी ने रवायती रक्स का मुजाहरा किया तो कोई वहाँ के खेल पेश करता रहा।
जहां स्पोर्ट्स साइंसेज की तालिबात ने खूबसूरत पीटी का मुजाहरा किया तो वहीं तलबा ने भी अपने फन के जौहर दिखाए। तलबा ने जब अपनी आवाज का जादू जगाया तो हर कोई झूमता दिखाई दिया। इस रंगारंग तकरीब को तलबा और तालिबात ने खूब सराहा। आज के इस फेस्टिवल में फेस्टिविटी और स्पिरिट ऑफ द स्टूडेंट्स को देख के मैंने रिक्वेस्ट किया है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खुशाब में भी बनाया जाए। मैं स्टूडेंट्स को वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो एजुकेशन की है, स्पोर्ट्स की है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, ताकि इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रिफाइंड हो। इस किस्म की तकरीबात से न सिर्फ तलबा और तालिबात की सलाहियतें मजीद निखर कर सामने आती हैं, बल्कि दहशतज़दा माहौल में ताज़ा हवा का झोंका भी साबित होती हैं। कैमरा टीम के साथ उस्मान शेख, वक्त न्यूज़, सरगोदा। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज चकवाल में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत रुकन कौमी असम्बली बेगम इफ़्फ़त लियाकत और ईडीओ एजुकेशन चकवाल डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा ने की। इस मौके पर समाजी ख़वातीन और असातिज़ा समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। अपने खिताब में रुकन कौमी असम्बली बेगम इफ़्फ़त लियाकत ने कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूदा हुकूमत ने मौसर कानून साजी की है और इसी की बदौलत ख़वातीन मुआशरे में मर्दों के शाना बशाना कौमी तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर रही हैं। दीगर मुकर्ररीन का यह कहना था कि शहरों के साथ साथ दही इलाकों में भी ख़वातीन को तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर ख़वातीन का यह कहना था कि वो हर शोबे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि वो खुद को पहचानें। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। इस मौका पर ख़वातीन का कहना है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतें मनवा रही हैं, लेकिन हर शोबा में इन्हें चैलेंजेस के साथ साथ तरह तरह के मसाइब का भी सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान भर में डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह के ऊपर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं और इसी तरह शेखुपुरा में भी किए गए हैं। इस दिन का बेसिक मकसद ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक़ आगाही पैदा करना है। मैं औरत ज़ात के लिए फ़ख्र से कहूँगी कि औरतें मर्दों से ज़्यादा ताकतवर हैं। मैं समझती हूँ कि ख़वातीन ने बहुत तरक्की की है। ख़वातीन बहुत सारे शोबों में बहुत आगे आ रही हैं और अब इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को खुद पहचानें। ख़वातीन का आलमी दिन मनाने का मकसद महज तकारीर का इनकार नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़रूरत इस अमर की है कि ख़वातीन की हैसियत को तस्लीम किया जाए और इन्हें वो मुकाम दिया जाए जिसकी वो हकदार हैं। विहाड़ी में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी विहाड़ी कैंपस में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई विहाड़ी प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से तहरीरें दर्ज की गई थीं। इस मौके पर रैली के शुरका का यह कहना था कि ख़वातीन जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों को मनवा चुकी हैं। ख़वातीन के बारे में कायम ये राय बिल्कुल गलत है कि ये मुश्किल और दुश्वार काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ख़वातीन में हर काम करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन मौका कम मिलने और ख़वातीन पर एतमाद ना करने की वजह से उनकी सलाहियतों से इस्तिफादा नहीं किया जा रहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको खबर दें कि फिरोजवाला में अताई डॉक्टर के हाथों खातून की हलाकत पर वर्सा सरापा एहतजाज बन गए। मुश्ताइल वर्सा ने डॉक्टर की खूब दुर्गत बनाई, मुंह काला करके गलियों में घुमाते रहे। फिरोजवाला शाहदरा के इलाके बेगम कोट के करीब आमिर नामी अताई के इलाज से खातून जाम बहक हो गई। खातून की हलाकत पर वर्सा मुश्ताइल हो गए और अताई को तशद्दुद का निशाना बनाया। लवाहिकीन ने क्लिनिक में तोड़ फोड़ भी की। जाम बहक खातून के
थोड़ा अताई पर तशद्दुद के बाद उसका मुंह काला करके उसे गलियों में घुमाते रहे और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वर्षा ने पुलिस चौकी बेगम कोर्ट के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि ये डॉक्टर पहले भी कई इंसानी जानों के साथ खेलता रहा है। वज़ीर आला इंतजामिया को शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने वाले अताइयों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दें। खानीवाल में पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आ गया। 5वीं क्लास के तालिब इल्म पर कार सरकार में मुदाखलत और डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। तालिब इल्म इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गया। ये है 5वीं जमात का तालिब इल्म वसीम, जो आज स्कूल जाने के बजाय अदालत जा पहुंचा, जिसकी वजह है थाना सदर की पुलिस का अनोखा कारनामा। कमसिन मुलजिम वसीम पर इल्जाम है कि उसने मुसल्लह होकर कार को रोका, तोड़फोड़ की और कार सवार को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जबकि 20,000 रुपए नकदी और कागजात लूटने का भी इल्जाम है। कमसिन मुलजिम के वकील का कहना है कि जाती रंजिश पर मुखालिफिन से भारी रिश्वत लेकर पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया। महकमा पुलिस ने इतना बड़ा कारनामा किया है कि फर्जी वकूआ बना के इन लोगों को उसमें मुलव्वस करके गलत तौर पे ये ज्यादती की है। आज हमने इस बच्चे की जो कि स्कूल गोइंग है, ये 5वीं क्लास का तालिब इल्म है, बस्ता भी अभी इसके साथ ही है और ये स्कूल से इसको ला के हमने अबूरी जमानत कराई है। अदालत ने 16 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर कर दी है। कमसिन तालिब इल्म ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ की अपील की है। खुशाब में 3 अजला को मिलाने के लिए 142.499 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होने वाली सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया। खुशाब के नवाही इलाके में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। रुकन सूबाई असम्बली मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू ने सड़क का इफ्तिताह किया। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग की हुकूमत दूर अफ्तादा इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर पुख्ता यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि वतन अजीज को तरक्की की राहों पर गामजन करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं, बिलखुसूस इलाज, मुआलजा, तालीम, मीठे पानी की फराहमी और शहरात की तामीर व मुरम्मत अव्वलीन मिशन समझकर पूरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और ये 3 अजला को मिलाने वाली सड़क है। ये माड़ी शाह सगीरा झंग से शुरू होगी, कारपेटेड रोड है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का विजन और ये स्पेशल ग्रांट है, ये किसी और स्कीम में नहीं, स्पेशल ग्रांट उन्होंने मुझे दी है। ये हमारा मुतालबा को 100 साल पुराना था, जो हमारे MP मलिक वारिस कल्लू साहब ने शफकत की है और वो हमको 2 डिस्ट्रिक्ट में मिला दिया है। सड़क पर काम शुरू हो चुके हैं और खती रकम से इंशाल्लाह सड़क मुकम्मल होगी और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम अपने इस इलाके थल को डेवलप करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके के वसी तर मुफात में दरियाए चेहलम लंगरवाला के मुकाम पर नवाज शरीफ पुल की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया है। ये मंसूबा इलाका थल की तामीर और तरक्की और रोजगार का ज़ामिन है। इस मौके पर मौजूद आवाम का कहना था कि सड़कों की तामीर से किसानों को अपनी अजनास मंडियों तक लाने में आसानियाँ हासिल हो सकेंगी, जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा, जिस पर वो बहुत खुश हैं। दूसरी जानिब पाकपतन में 18 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले कारपेट रोड की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी लेबर ह्यूमन रिसोर्स पंजाब मियां नवीद अली समेत मुस्लिम लीगी ओहदेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मियां नवीद अली का कहना था कि हुकूमत पंजाब अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। सियालकोट में 10 लाख रुपए मालियत से लगाए गए क्लोज सर्किट कैमरे फाल हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। मॉडल थाना कैंट की हदूद में वाक़े लारी अड्डा सियालकोट में मुख्तलिफ मकामात पर 16 क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब किए गए हैं और बाकायदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसे फाल बना दिया गया है। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि क्लोज सर्किट कैमरों के सिस्टम की वजह से लारी अड्डा पर आने वाले मुसाफिरों और शहरियों पर 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी और इन कैमरों की मदद से समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जा सकेगा। लगे भी थे, उनको 2
दोबारा रिपेयर करवा के उनको भी चालू करवा दिया गया है और इससे हट के हमने तकरीबन कोई 20 कैमरे जो हैं जिनमें रिवॉल्विंग वाले भी हैं। उनका मजीद कहना था कि समाज दुश्मन अनासर पर शहरियों को भी पुलिस के साथ भरपूर ताउन करना होगा ताकि अमन कायम रह सके। उन्होंने लारियड्डा का तफसीली दौरा भी किया और क्लोज सर्किट कैमरों के अलावा पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात को भी चेक किया। नारोवाल में मुतालिबात की मंजूरी के लिए लाइव स्टॉक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने जस्सर बाईपास पर धरना दिया और अपने मुतालिबात के हक में नारे लगाए। जस्सर बाईपास पर धरने से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का यह कहना था कि लाइव स्टॉक एम्प्लॉयज यूनियन पंजाब अरसा दराज से अपने मुतालिबात के लिए सरापा एहतजाज है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई ना हो सकी। उन्होंने मुतालिबा किया कि पैरा वेटरनरी स्टाफ का सर्विस स्ट्रक्चर रिस्क अलाउंस फिक्स TADA 45 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किए जाएं। उन्होंने आरसी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने और वर्किंग आवर्स में काम कराने का भी मुतालिबा किया। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर 10 मार्च तक मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो पंजाब भर में मुलाजिमीन काम बंद कर देंगे। दूसरी जानिब जस्सर बाईपास पर एहतजाज के बाद शकरगढ़ से नारोवाल लाहौर जाने वाली ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई। गुजरांवाला में BCom पार्ट 1 का दाखिला ना भिजवाए जाने पर तुलबा ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के सैकड़ों तुलबा ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान तुलबा ने रोड ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि कॉलेज इंतजामिया ने जानबूझकर उनके दाखिले नहीं भिजवाए। शाहकोट में ज़िले इंतजामिया की जानिब से अस्पताल और क्लिनिक सील किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर एहतजाजी रैली भी निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर ज़िले इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज किए गए थे। मुजाहिरीन ने कहा कि महकमे सेहत की जानिब से ना तो उन्हें वार्निंग दी गई और ना ही कोई शोकास नोटिस दिया गया। उनका यह कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट ने गैर कानूनी तौर पर उनका अस्पताल और क्लिनिक सील किया। मंडी बहाउद्दीन में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए उलमा कराम ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तमाम मशाइख मुल्क की यकजहती और तहफ़्फ़ुज़ वतन के लिए एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों का मुकाबला करें और कौम को दुरुस्त समत में रहनुमाई करें। उन्होंने कहा कि खानकाई निज़ाम मुल्क में दुखी इंसानियत की भलाई और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। अहम खबर शामिल करेंगे। बाजोड़ एजेंसी में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। भारी मिकदार में असलहा बरामद किया गया है। FC की जानिब से तहसील सलार ज़िले के इलाके ढेरी में सर्च ऑपरेशन किया गया। जब्त किए गए असलहे में दस्ती बम, फ्यूज और बम बनाने का सामान भी शामिल है। ताज़ा तरीन खबर है, आपको बताएं कि बाजोड़ एजेंसी में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया है और भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया है। FC की जानिब से तहसील सलार ज़ई के इलाके ढेरी में ये सर्च ऑपरेशन किया गया और इस दौरान जब्त किए गए असलहे में दस्ती बम, फ्यूज और बम बनाने का सामान भी शामिल है। तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया गया है बाजोड़ एजेंसी में, जहां पर तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया और भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। खालिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, आगाह कीजिएगा मजीद। जी बिल्कुल, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत तमाम कबायली इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयां जारी है और इसी सिलसिले में ताज़ा कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजौर के इलाके में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। इस हवाले से जो फ्रंटियर कोर के तर्जुमान है उनके मुताबिक ये तहसील सालारजई के इलाके में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई, जहाँ सर्च ऑपरेशन के दौरान
भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है और बरामद होने वाले असलहे में दस्ती बम, फ्यूज और बम बनाने का दीगर सामान, दीगर धमाकाखेज मवाद शामिल है, वो बरामद कर लिया गया है। ताहम इस सिलसिले में जो बाजौर के दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी फोर्सेज में जो शरपसंद अनासर है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करती है। तफसीलात के लिए शुक्रिया खालिद। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सूबा सिंध से। सूबा सिंध की खबरों में आपको बताएं कि शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तालिबात समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली सैकड़ों खवातीन ने शिरकत की। अपने किताब में वाइस चांसलर डॉक्टर परवीन शाह ने कहा कि इस्लाम ने औरत को बुलंद मुकाम दिया है, लेकिन आज भी मुल्क में औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औरतों को वो मुकाम नहीं दिया जा रहा जिसकी वो मुस्तहिक हैं। दीगर शुरका का ये कहना था कि खवातीन की तरक्की और माशरे की इस्लाह के लिए तालीम को आम करना होगा। दूसरी जानिब टंडू अल्लाह में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुकामी फलाही तंजीम की जानिब से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। टंडू अल्लाह में कायम गैर सरकारी फलाही अस्पताल में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। मुकर्ररीन का यह कहना था कि मुल्क में ज़राए इब्लाग की तरक्की के बावजूद खवातीन अभी तक अदम तवज्जो का शिकार हैं। उनका यह कहना था कि माशरे में खवातीन के खिलाफ जराइम, तशद्दुद और इस्तेहसाल के खात्मे के लिए मौसर कानून साजी की ज़रूरत है। जिला बदीन का वाहिद गर्ल्स डिग्री कॉलेज इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। खस्ताहाल इमारत किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। ये मनाजिर किसी असारे कदीमा के नहीं बल्कि जिला बदीन में वाक़ वाहिद गर्ल्स डिग्री कॉलेज के हैं। यहाँ बुनियादी सहूलियात का फकदान तो है मगर इमारत किसी असारे कदीमा से कम नहीं। छतों से गिरता प्लस्तर किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। कॉलेज की इमारत को तामीर हुए 28 साल हो चुके हैं मगर इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। तालिबात ने हुकूमत सिंध और महकमा तालीम से अपील की है कि जल्द अज जल्द इमारत की तामीर नौ की जाए ताकि बिला खौफ तालीम हासिल की जा सके। अहम खबर शामिल करेंगे। दूसरों की सिक्योरिटी के जिम्मेदार खुद अपनी सिक्योरिटी के मुंतजिर हैं। बदीन में पुलिस हेडक्वार्टर बैरूनी दीवार से महरूम है। वॉच टावर भी नस्ब नहीं जबकि सिक्योरिटी के इंतहाई नाकिस इंतजामात हैं। दूसरों की सिक्योरिटी के जिम्मेदार खुद अपनी सिक्योरिटी के मुंतजिर हैं। बदीन में पुलिस हेडक्वार्टर बैरूनी दीवार से महरूम है। वॉच टावर भी नस्ब नहीं जबकि सिक्योरिटी के भी इंतहाई नाकिस इंतजामात हैं। तफसीलात जान लेते हैं। दानिश इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, बदीन में सिक्योरिटी वाले खुद ही सिक्योरिटी के मुंतजिर बने बैठे हैं जबकि गुज़िश्ता रोज डीआईजी की जानिब से हैदराबाद डिवीजन के तमाम तालीमी और सरकारी अदारों को हाई अलर्ट करने की हदायत भी कर दी गई है। हसास अदारों की जानिब से हाई अलर्ट तो किया गया है मगर पुलिस हेडक्वार्टर बदून की बैरूनी दीवार से ही महरूम है। पुलिस हेडक्वार्टर में मुकीम 3000 से ज्यादा पुलिस अफसरान है और उनके खानदान की जिंदगियां दहशतगर्दी का आसान हदफ बन सकती हैं। पुलिस हेडक्वार्टर की तबाहाल दीवार के अरास्ते की तामीर के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की खतीर रकम करप्शन की नजर हो चुकी है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पुलिस हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी में जो कायम मोर्चे होते हैं वो खाली पड़े हुए हैं जिसमें सिक्योरिटी का कोई भी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस का अपना हेडक्वार्टर का जो मेन 2 गेट हैं उस एक गेट पर शुक्रिया दानिश, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ कल ठट्ठा का सियासी दौरा करेंगे जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जलसा-ए-आम ठट्ठा के मक्कली क्रिकेट ग्राउंड पे मुनक्किद किया जाएगा।
ٹھٹھا میں پنڈال سج گیا، 25,000 کرسیاں لگا دی گئیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے سندھ میں اپنی سیاسی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرنے کا آغاز ٹھٹھا سے کیا جا رہا ہے۔ تاہم ٹھٹھا کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب کے علاوہ دیگر صوبے محرومی کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے سے کوئی خاص توقعات نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے آنے سے اور جلسہ کرنے سے ٹھٹھا یا سندھ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس دن سے یہ گورنمنٹ میں آیا اسی دن سے سندھ میں تو لائٹ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے شہروں کی لائٹ ہے نہیں۔ جب لائٹ والے احتجاج کرتے ہیں یا کوئی کرتے ہیں تو اس کے اوپر وفاق سے پتہ نہیں کیا حکمہ کام اسے بولے ایف آر کٹی جاتی ہے۔ ٹھٹھا کا جو دورہ کرا ہے اسے بہت توقعات ہے کہ یہاں پر آئیں گے، وہ پیکیج دیں گے، پوری سندھ کے لیے پیکیج دیں گے، کراچی کے لیے پیکیج دیں گے، جو انٹیریئر سندھ ہے، مظلوم قومیں رہتی ہیں، مظلوم عوام رہتی ہے، ان کے لیے پیکیج دیں گے اور ترقیاتی کاموں میں ہماری مدد کریں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹھٹھا میں 18 سے 20 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ اور کمر توڑ مہنگائی نے پہلے ہی جینا دوپہر کر رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ وزیر اعظم کل ٹھٹھا کی عوام کے لیے کیا اعلانات کرتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے حیدرآباد سرکٹ بینچ میں اوور بلنگ اور ناجائز کٹوتی پر حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے خلاف دی گئی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو طلب کر لیا۔ دوران سماعت درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے جنوری 2015 سے دسمبر 2015 تک 16,93,291 صارفین پر 96 کروڑ 96,24,652 یونٹ کا ڈکٹیشن قواعد و ضوابط کے برخلاف لگایا گیا، جس کے ذریعے صارفین سے 87 کروڑ 43,24,096 روپے کے واجبات طلب کیے گئے ہیں۔ لاسٹ سماعت 16 فروری کو تھی، جس میں ریسپونڈنٹس کے وکلا نے ڈیٹ لی تھی، ڈیٹ الاؤ کی تھی 3 مارچ کی، تو آج سبمٹ نہیں ہوا جواب وہاں سے۔ تو مجھے جو آرڈر آیا ہے وہ یہ ہے کہ کاسٹ امپوز کی ہے ریسپونڈنٹس پر اور ہیسکو چیف پر کو ذاتی طور پر 6 اپریل کو طلب کیا ہے۔ واضح رہے کہ سماعت کے موقع پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم جاری کیا ہے۔ عدالت کا حکم نہ ماننے پر جرمانہ عائد۔ مردان میں پولیس نے کامبنگ آپریشن کے دوران 3 سہولت کاروں سمیت 15 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ مردان میں تھانہ تورو کی حدود میں پولیس نے کامبنگ آپریشن کے دوران 45 مکانات کی تلاشی لی اور اس دوران جرائم پیشہ افراد کے 3 سہولت کاروں سمیت 15 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 5 بندوقیں، 1 شاٹ گن، 1 کلاشنکوف، 1 عدد پستول اور متعدد کارتوس بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ آپریشن کے دوران 8 غیر رجسٹرڈ کرایہ داروں کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سرچ آپریشن کے دوران پولیس نے جدید سائنسی آلات کے ذریعے 80 مختلف گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور 60 افراد کا ڈیٹا حاصل کیا، جس کے بعد 20 غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکلیں قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ راولپنڈی سے اہم خبر ہے۔ راولپنڈی میں گزشتہ روز فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے 4 افراد کو نوشہرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد کا تعلق نوشہرہ کلاں سے ہے اور 4 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ساجد اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد، آگاہ کیجیے گا مزید۔ جی بالکل، گزشتہ رات کو راولپنڈی میں تانا ایئرپورٹ کے علاقے میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں 4 افراد گھر کے اندر قتل کر دیے گئے تھے۔ آج ایمبولینس کے ذریعے ان کی میت نوشہرہ کلاں پہنچا دی گئی ہے، جہاں پر نوشہرہ کلاں میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں صفی اللہ اور ذیشان اور مس بشرا، شاہزیب اور زخمی امان علی کو اب سے کچھ دیر پہلے نوشہرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے لواحقین کا کہنا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ اس میں فوری طور پر تفتیش کیا جائے۔ ابھی تک ان افراد نے کسی کے خلاف دعوے داری نہیں کی ہے۔ جی شکریہ ساجد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دیربالا پولیس لائن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 4 SIs کو انسپیکٹرز کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ دیربالا پولیس کے 4 SIs کو انسپیکٹرز کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ اس سلسلے میں پولیس لائن میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں DPO دیربالا اطہر وحید اور DSPs اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے ترقی پانے والے سب انسپیکٹرز کو انسپیکٹرز رینک کے بیج لگائے۔
शांगला और गिरदनवाह में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। दीगर तहसीलों दीर, बटग्राम और पहाड़ी इलाकों में ये सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मौसम मजीद सर्द हो गया है। शांगला से अहम खबर है, जहां पर शांगला और गिरदनवाह में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। दीगर तहसीलों में दीर, बटग्राम और पहाड़ी इलाकों में ये सिलसिला वक्फे से जारी है। तफसीलात जान लेते हैं, फजल रबी हमारे साथ मौजूद हैं। फजल, बताइएगा, बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और मौसम मजीद सर्द हो गया। जी बिल्कुल, गैर मुतवक्की बर्फबारी सुबह से शांगला और इसके गिरदनवाह में जारी है, जिसकी वजह से सर्दी फिर लौट आई है और लोगों ने गर्म मलबूसात निकाले हैं। लेकिन शांगला में जब बर्फबारी होती है तो लोगों और मकामी जो मकीन है उनके मुश्किलात में इजाफा कर देती है। जो आज जो बर्फबारी हुई तो उससे शांगला टाप का जो मेन रोड था उसमें मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खासकर जो मरीज है जिनको शांगला जो अस्पताल है उसमें सहूलियत न होने की बराबर है, जिसकी वजह से अक्सर मरीजों को सवात ले जाना पड़ता है। जहाँ जो शांगला का मेन शारा था उसमें मरीजों को खास मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन जो ये बर्फबारी ये गैर मुतवक्की थी, जो लोग थे वो उस दिन को तैयार ही नहीं थे, उनके लिए तो जो सोख की। शुक्रिया फजल, आपने अपडेट किया। और अब रुक करेंगे बलोचिस्तान का। बलोचिस्तान में तालीमी इमरजेंसी का दावा सिर्फ फाइलों की हद तक ही महदूद है। सोहबतपुर में चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े प्राइमरी स्कूल की हालत जार इंतहाई अबतर है। इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी है, जबकि बिजली, पानी और फर्नीचर समेत दीगर सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है। मजीद जानने के लिए देखते हैं जबार उमरानी की ये रिपोर्ट। तालीम इंसान का बुनियादी हक है। महकमा तालीम की लापरवाही ने सोहबतपुर के बच्चों को इस बुनियादी हक से महरूम कर रखा है। सोहबतपुर के जिले हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर के फासले पर मैन शराह पर वाक़े प्राइमरी स्कूल अब्दुल रज़ाक की हालत देखकर हर बच्चा स्कूल में और तालीम इमरजेंसी के दावे सिर्फ फाइलों तक महदूद होने का वाज़ेह सबूत है। इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी है। बिजली तो अपनी जगह पर, दरवाजा और खिड़कियाँ और बोसीदा छत मौत के खौफ ने सख्त सर्दी हो या सवानेजे पर सूरज, बच्चे खुले आसमान तले ही तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। पीने के पानी की सहूलत तो दूर की बात है, मुस्तकबिल के मेहमान तख्तियाँ भी जोड़ों के पानी से साफ करते हैं। पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमें पानी पीने के लिए नहीं है और बिजली की सहूलत भी नहीं है। बिजली भी नहीं है, चारदीवारी भी नहीं है। हम सर्दियों में भी स्कूल के अंदर जाते हैं। मैन शराह से चंद कदम वाक़े इस बदनसीब स्कूल को रोज गुजरने वाले महकमा तालीम के अफसरान ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ियाँ चंद लम्हे के लिए रोककर स्कूल की हालत पर नजर डालने की जहमत तक गवारा नहीं करते। तकरीबन 10 साल से यहाँ तालीम दे रहा हूँ और हुकूमत की तरफ से कोई सहूलियत वगैरह नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि दरवाजे, खिड़कियाँ या स्कूल की हालत पीछे से आगे से गिर रही हैं। जरूरत इस बात की है कि सूबाई हुकूमत सोहबतपुर में तालीमी इमरजेंसी को हकीकी मानों में नाफिज करे, ताकि सरकारी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले गरीबों के बच्चों को बुनियादी सहूलियत मुयसर आ सके। कैमरा टीम के हमरा जब्बार उमरानी, वक्त न्यूज़, सोहबतपुर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।